Harshun, yesterday we have discussed about our topic real numbers, in which we have discussed about uh, our definition of real number. Then we have discussed about their fundamental theorem of arithmetic. Then we have discussed about the revisiting of irrational numbers. Then after that we have solved some problems based on our topics there. And in this part of section, we are going to discuss with our same topic, real numbers. Look, then we are going to start with our problem stated with our fundamental theorem of arithmetic. One of the important problems what we have that check whether 6 to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Okay, we have to check that 6 to power n. Check whether 6 to power n cannot end with the digit 0. Then to check that our 6 to power n cannot end with the digit 0, what we do? We have to use the concept of fundamental theorem of arithmetic. Okay, beta. Then look, first of all, we are going to find out the write down 6 to power n as in its prime factor, 2 and 3 its prime factors. Then we have 2 into 3 to power n. Okay, and now look, what do you see that in a prime factorization of 6 to power n, there are 2 and 3. For 6 to power n to end with the digit 0, for 6 to power n to end with the digit 0, remember that कि कोई भी नंबर है अगर वो उसकी एंडिंग 0 से होती है, मीन्स उसका एक फैक्टर आपका क्या होगा बेटा, 5. अगर 6 टू पावर n की 0 की एंडिंग 0 के साथ होगी तो उसका एक फैक्टर आपका 5 होना चाहिए. ठीक है, आप कोई भी नंबर लो जिसका यूनिट डिजिट पे आपका 0 है, तो वो नंबर ऑलरेडी जो नंबर्स होते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं. तो व्हाट यू सी दैट in the prime factorization of 6 to power n, it's contain 2 and 3. For 6 to power n to end in the digit 0, prime factorization of 6 to power n, prime factorization of 6 to power n should contain the, what it should contain? It should contain the prime 5. But what do we see that there is then we can say that look, we have to be check its end with the digit 0. But how do we see that if this number are going to be end with digit 0, then one of the factor must be a 5 there. But what we see that the prime factors of 6 contains only 2 and 3. It not contains 5. It not contains 5. And fundamental theorem of arithmetic guaranteed that what is our fundamental theorem of arithmetic? It's guaranteed that every composite number can be expressed as a product of prime factors, and it is unique and apart from order. Then our fundamental theorem of arithmetic guaranteed that other than 2 and 3, it cannot have a factor of 5. Hence, 6 to power n cannot end with the digits 0. ओके बेटा, आई होप सो कि आप समझ गए इस एक्सप्रेशन को. वैसे ही आप किसी भी नंबर्स के साथ 12, 7, 21 आप वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो. इफ़ वी हैव अ 7 टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे. आप दिखाओगे कि जो 7 के फैक्टर्स है वो 1 या 7 हो सकता है. टू बी एंड विद द डिजिट 0, 7 टू पावर n. If we are going to be accept that if just suppose possible that 7 to power n going to be in digit 0, then its prime factor must contain 5. But in the prime factors of 7, we are not going to be find out 5 there. Then our fundamental theorem of arithmetic guaranteed that what 7 to power n cannot end with the digit 0 there. Okay, तो इस तरह क्वेश्चंस आप बना लेंगे. 4 to power n के साथ भी आप बना लेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप नोट कर लें. So that 4 to power n cannot end with the digit 0. इससे रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा. 4 to power n cannot end with digit 0. 15 to power n cannot. 21 to power n cannot end with the digit 0. ठीक है बेटा, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड टॉपिक के साथ आप इसको बना सकते हैं. सो दैट 4 to power n cannot end with the digit 0.
15 to power n cannot end with the digit 0, 21 to power n cannot end with the digit 0. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Find the ratio between LCM and HCF of 5, 15 and 20. We have to find out the ratio of HCF and LCM of 5, 15 and 20. लोग बात करते हैं HCF के, तो HCF तो कॉमन है हमारे पास कि जो हमारे सब में कॉमन मिलने वाला नंबर है वो 5, 15, 20 का HCF 5 होगा. What is the HCF of 5, 15, 20? 5 सब में कॉमन होगा. Then the HCF of 5, 15, 20 is 5. It's already clear that. Then we have to find out LCM of 5, 15 and 20. Then we are going to find out the LCM of 5, 15 and 20. 5, 1, 5, 3, 5, 4. No, sorry. First of all, process से जाएं आप. Start with 2. ठीक है. वो आपकी गारंटी करती है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ते नहीं, पर आप कर सकते हो वहाँ पे. 5, 15, 10, 5, 15, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 5. फिर यहाँ पे we have to be use 3, 5, 15 and 5. इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते हैं बेटा तो सही होगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. ओके, 2, 10, 20, then 2, 5, 10, then 3, 5, 15 and then 5. So look, 2, 2, 4, 3, 12, 5, 60. What do we see that the LCM is our 60 there. Then HCF and LCM, the ratio of HCF and LCM is what? 5 is to 60. And what do we get? 1 is to 12. ठीक. And if it's asked the ratio of LCM to HCF, then it's 12 is to 1. Okay. चलिए next question. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The HCF of 2472, 1284. The HCF of 2472, comma 1284, and a third number n is 12. Third number n ले लिया. We have given that the HCF of this number is 12. If the LCM is, and also LCM is given there. If the LCM of these numbers are 2 cube 3 square, 2 cube 3 square into 5 into 103 into 107, 2 cube 3 square 503 into 107, then the number n is, look, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास वी हैव 3 नंबर्स 2, 4, 7, 2, 1, 2, 8, 4 एंड n. वी हैव सम नंबर्स देयर. HCF 12 दे रखा है एंड LCM इज आल्सो गिवन देयर. देन वी हैव टू फाइंड आउट द दिस नंबर. ठीक, ये हमारी n, तो थर्ड नंबर n है, वो क्या हो सकता है. देन हाउ कैन वी सॉल्व इट. तो टू गेट दिस सॉल्यूशन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं वहाँ पे कि हम 2472 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लें. ठीक है बेटा, क्या कर लें कि हम 2472 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करें. देन 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 212, 224, 236, 2612. देन अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, वी हैव 212, 224, 236, 2612. देन वी हैव 2612, 212, 2816. देन अगेन 236 एंड देन अगेन वी हैव 2 देयर. Then again we have 2 there. Okay. Then it's a 309. Then 3 and then 310103. Then last number we what? It's a 103. Then also we are going to find out the it's a 1284. We are going to find out 1284.
Now look, the prime factors of we are going to find 1, 2, 8, 4. It's again divisible by 2. It's again 2, 6, 12, 2, 4, 8, 2, 2, 4. Then 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 1, 2. Then we have 321. Then we have 2, 2. Then 321 it must be divisible by 3. And then we get 313, 037. Then it's a 107. Look. Now look, we get its prime factors. 2 to square 3 into 10 ठीक. Now we have prime factors of 2, 4, 7, 2, 1, 2, 8, 4. ठीक है ना. अभी हमारे पास 2, 4, 7, 2 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 1, 2, 8, 4 के प्राइम फैक्टर हैं. एलसीएम हमारे पास गिवन है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 into 100 into 7. लुक कैसे लेते हैं एलसीएम. और हमारे पास एक नंबर n है, हमें उस n को फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास एलसीएम ये है तो 2 to power 3 मतलब ये तो कंटेन हो गया, क्योंकि जो भी कॉमन पावर्स होते हैं उनके हाईएस्ट पावर को लेते हैं, कंटेन करते हैं. तो वो 2 to power 3 हो गया. देन वी हैव 3 स्क्वायर मीन्स जो आपका n है वहाँ पे 3 वी हैव सिंगल 3 देयर. इट्स कंटेन 3 स्क्वायर मीन्स वो आपका 3 का स्क्वायर भी नंबर कंटेन कर रहा होगा. बात समझ में आ रही बेटा. क्योंकि हमारे दोनों प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 3 है. ठीक. पर हम पावर्स के हाईएस्ट पावर्स लेते हैं, तो ये 3 स्क्वायर एलसीएम में आ रहा, तो n में हमारे पास क्या होगा 3 स्क्वायर कंटेन करेगा. देन इन दोनों में 5 नहीं है, वी हैव वन सिंगल 5 मतलब n 5 कंटेन कर रहा होगा. एंड वी हैव 103 एंड इंटू 107 मीन्स जो हमारा n होगा, जो पॉसिबिलिटी है इट्स अ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि बाकी दो नंबर तो हमारे पास कंटेन है. देन आवर थर्ड नंबर n इज गिवन बाय 8 into 9 into 5 means 40 into 9 मीन्स जो हमारा थर्ड नंबर था बेटा वो क्या था, इट्स आवर 300. ठीक है. क्या हो जाएगा, इट्स आवर इट्स अ कंटेन एलसीएम वी हैव एन इज व्हाट. ठीक है. तो ये हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी थर्ड नंबर की इट्स गिवन बाय दिस. ठीक. अगर कोई एरर हो चेक करते हैं. एचसीएफ ऑफ 2472. ठीक है. चलिए फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को. वी आर गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 2472 1284 एंड n and the third number n is 12 if their LCM is देखो यहाँ पे बेटा ध्यान देना पड़ेगा कि एचसीएफ गिवन है 12. ठीक है. एचसीएफ 12 है तो 12 उसका एक फैक्टर होता है, तो 360 का फैक्टर है, चलेगा, वहाँ पे बात बन रही है. एंड एलसीएम इज गिवन बाय 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 into 103 into 107. देन द नंबर n इज, तो हमने क्या किया, पहले प्राइम फैक्टर्स निकाला 2472 का. इट्स गिवन बाय 2 2 2 3 टाइम्स, देन 8 3 24 24 into 103 वी गेट 2472. Then we are going to find out the prime factors of 1 to 84. What do we get? We get 2 into 2 into 2 into 3 into 107. Then our LCM हमारे पास क्या गिवन था कि जो LCM थी हमारी 2 क्यूब into 3 स्क्वायर into 5 into 103 into 107. Then हमारे पास LCM थी, हमारे पास प्राइम फैक्टर थी, हमें इस नंबर n को काउंट करना था. ठीक. तो जो हमारी नंबर n होगी, लुक अब इस नंबर n में एलसीएम में 2 to power 3 है. और ठीक. और हमारे पास जो कॉमन नंबर्स की बात आ रही थी कि जो हमारा n कंटेन करेगा वो क्या हो सकता है. एलसीएम में 2 into 2 into 2 into 3 into 3 103, पर अब 360 के साथ जाएंगे 1472 एचसीएफ. तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. जो हमारा n कंटेन करेगा वो हम ले सकते हैं 12842 into 2 है, हाईएस्ट 2 to power 3 लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि 360 छोटा नंबर हमारे पास पॉसिबिलिटी है. इट्स 180 ऑल्सो डिविजिबल बाई आवर 1260. तो n को यहाँ पे क्या लेते हैं पावर में, ये आप यहाँ पे 2 स्क्वायर लीजिए. 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स 4 4 5 20 into 9 एंड आवर द वैल्यू ऑफ आवर थर्ड नंबर n इज, आप चेकआउट कर लीजिएगा. ठीक. क्योंकि 360 के साथ जाएंगे तो 2472 1284 360 का एचसीएफ 12. ठीक. तो वहाँ पे 180 को पहले मिल जाएगा वो नंबर. ठीक है.
तो ये थे हमारे सॉल्यूशन ऐसे किसी प्रॉब्लम के साथ। तो n की वैल्यू होगी बेटा वो क्या हो जाएगी 180। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्टी टू इंटू फाइव, 5 to 10, 160। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 21:17। We have two numbers are there. Two numbers are in the ratio 21:17. We have two numbers A and B having the ratio 21:17. Okay. If their SCF is 5, now it's given that their SCF is 5, and we have to find out this number. ठीक है, अभी क्या गिवन है कि हमारे पास दो नंबर्स के रेशियो है 21/17, SCF 5 गिवन है। तो हमें बेटा क्या चाहिए, हमें नंबर्स क्या चाहिए, हमें वो नंबर्स फाइंड करना है। तो देन ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप रेशियो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा, एंड देन वन थिंग आप अगर उस पर ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी अगर कुछ गिवन रेशियोज है, लार्ज गिवन रेशियोज हैं, तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो आप उसमें आप चेक करिए दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो जो उनको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो जो नंबर्स होते हैं वो उनके एचसीएफ के वैल्यूज से ही सिंप्लीफाई हो पाते हैं। मीन्स इस प्रॉब्लम में जो हमारे पास ये रेशियो गिवन है A/B 21/17, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और हमें नंबर चाहिए। मैंने भी क्या एक्सप्लेन किया कि वो जो सॉर्ट करते जाते हैं फाइनली जिन वैल्यू से सॉर्ट करते हैं उसकी नंबर्स की एचसीएफ होती है। एचसीएफ वी हैव गिवन देयर, मीन्स जो हमारा नंबर A होगा, नंबर A इज गिवन बाय 21/5 एंड B 17/5। ठीक है ना, मीन्स जो हमारे यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं A के, अगर हम बात करते हैं सॉरी नॉट A के, अगर हम यहाँ पे रेशियो से A की वैल्यू करते हैं इट्स 21 के और जो B है हमारी 17 के, तो जो ये वैल्यू K है इस रेशियोज में जो नंबर्स निकालना है वो आपकी वो एचसीएफ ही है, वो वैल्यू की आपकी एचसीएफ 5 है। यहाँ पुट करेंगे देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ दिस नंबर्स ऑफ A and B, द रियल नंबर्स A and B इज गिवन एज इट्स व्हाट 105 एंड 85। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप हमेशा माइंड में करिएगा। जो सिंपलेस्ट रेशियो में फाइंड आउट करते हैं वो जो सिंप्लीफाइड होता है, जो उसका फैक्टर होता है वो दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। ठीक, LCM of two numbers is 10 times their SCF. Now, it's LCM of two numbers is 10 times their SCF. LCM of two numbers, just suppose the numbers of A and B is 10 times the SCF of 10 times the SCF of AB. Look, LCM of two numbers is 10 times their SCF. LCM of two numbers is 10 times their SCF. Sum of SCF and LCM is 495. Sum of SCF and LCM means SCF of AB plus LCM of AB. Now it's given that sum of the SCF and LCM is 495. Sorry, it's given not 95. It's 495. If one number is 90, then find the other number. If one number, let's suppose हमने A को ले लिया, A is 90. Look, if one number is 90, then find the other number. ठीक बेटा, अभी हमारे पास क्या गिवन है कि जो हमारी एलसीएम है AB की वो 10 टाइम्स एचसीएफ है और जो एचसीएफ ऑफ AB और एलसीएम ऑफ AB है वो हमारे पास बेटा क्या है 495 है। मीन्स अगर हम स्टार्ट करते हैं एज्यूम करते हुए कि सपोज कि
जो नंबर्स है उनका HCF अगर x है तो बेटा तुम्हारे पास LCM क्या हो जाएगा 10x होगा। बात समझ आ रही है ना। अगर हमने क्या किया कि सपोज कि हमने HCF x ले लिया तो LCM हमारी क्या हो जाएगी 10x। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इस HCF और LCM का सम दे रखा है। अब क्या करते हैं, इसका गिवन का यूज करते हैं। HCF ऑफ AB जो है HCF ऑफ AB is x and LCM is 10x, then we have sum is given as 495। तो यहाँ से क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं। It's 11x 495 and the value of x is, now look, we get the value of x there, means getting the value of x, the HCF of these numbers are 45 and our LCM is what 450। हमारे पास HCF है, हमारे पास LCM भी है। नाउ बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, हमें यहाँ पे HCF LCM फाइंड आउट नहीं करने थे, हमें अदर नंबर को फाइंड करना था। देन अब कहाँ जाएंगे? अब वी हैव अबाउट, हमारे पास क्या थी कि जो हमारी HCF और LCM की प्रोडक्ट होती है वो दोनों नंबर्स प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। HCF 45, LCM 450, A हमने एक नंबर को 90 लिया, वी हैव टू फाइंड अदर नंबर, दिस B 0095 45, देन 45 इंटू 5 125, मीन्स जो हमारा सेकेंड नंबर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ B इज 125 5 25 5 4 20 2 to 5। ठीक है, तो जो हमारा बेटा सेकेंड नंबर हो जाएगा इट्स आवर 225। ठीक, तो फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 10 टाइम्स HCF, सम ऑफ HCF एंड LCM इज 495। इफ वन ऑफ द नंबर इज 90 देन फाइंड आउट द अदर नंबर। ठीक है बेटा, तो गिवन था हमने नंबर दिया, लेट द नंबर बी LCM ऑफ नंबर्स AB इज 10 टाइम्स HCF ऑफ AB। देन यहाँ पे गिवन था कि इनके जो सम्स है नंबर्स के HCF और LCMs के वो 495 है। तो हमने क्या किया, एक नंबर दे रखा है 90, सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, लुक लेट्स सपोज HCF इज x एंड LCM क्या हो बेटा, क्योंकि जो वहाँ पे हमारे पास गिवन है कि आपकी LCM 10 टाइम्स है, देन वी हैव HCF x देन आवर LCM इज व्हाट 10x। देन क्या किया हमने पास जो गिवन वैल्यूज थी कि जो सम्स HCF LCM की 495 वहाँ पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया। After finding out the value of x, we get HCF is 45 and LCM is 450. Now we have one of the verification, जो हमारे पास relationship है वो क्या है, one of the important relationship is that product of HCF and LCM is equal to product of the numbers HCF into LCM equal to multiply of first number and second number। एक नंबर 90 दे रखा था, उस relationship पे हमने values put की, then after solving we get the second number is as a 225। Now in next question what we have, the HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively। The HCF and LCM of two numbers are, the HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively, 33 and 264 respectively। When the first number is completely divided by 2, the quotient is 33, find the other number। When the first number is completely divided by 2, अभी तो यहाँ पे given है जो first number है वो divided by 2 है, the quotient is 33, the quotient is 33, find the other number। ठीक, कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट ऑफ ऑल जो करें, फर्स्ट नंबर है डिवाइडेड बाई 2 है, कोसेक 33 है, तो फर्स्ट नंबर हम गेट कर लिए। क्या होगा हमारे पास फर्स्ट नंबर, भाई अगर फैक्टर 2 को डिवाइड कर रहा है, कोसेक का मतलब 2 इसका फैक्टर है, तो नंबर क्या होगा 2 इंटू 33, तो वी गेट फर्स्ट नंबर 66। नाउ वी हैव गिवन HCF 33, LCM 264 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर। देन ये हमारा फर्स्ट नंबर A लिया, देन वी हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर B।
क्या है हमारे पास रिलेशनशिप A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन एज बाई HCF इंटू LCM। ये हमने 66 ले लिया और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, HCF की वैल्यू 33 है, LCM 264 है, देन B इज गिवन बाय 33 इंटू 264 डिवाइडेड बाय 66, 313 313 326 and then 11 to 22, then we get B is equal to 212 236 224, then the value of other number क्या मिल जाएगा बेटा, जो हमारा अदर नंबर होगा वो हो जाएगा 132। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the LCM of 2.5, 0.5 and 0.175. Look, we have to find the LCM of of 2.5, 0.5 and 0.175 and 0.175। ठीक है बेटा, we have to find out the LCM of 2.5, 0.5 and 0.175। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट में डेसिमल्स नंबर को पहले कन्वर्ट करते हैं रेशनल फॉर्म में। इट्स 25/10, इट्स 5/10 एंड 175/1000। ठीक, जब आपको ऐसे कोई भी डेसिमल का नंबर दें तो पहले आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए उसके रेशनल फॉर्म्स में। अब ये रेशनल फॉर्म्स हो गए, अब ऐसे किसी फॉर्मेशन में बेटा अगर हमें LCF या LCM निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे LCM निकालनी है, तो किसी भी रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? LCM ऑफ दिस नंबर इज गिवन बाय, जो उनके न्यूमरेटर्स है उनका LCM लेंगे, LCM ऑफ 25, 5 एंड 175, डिनोमिनेटर का HCF लेते हैं, HCF ऑफ 10, 10 एंड 1000। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास नंबर्स रेशनल्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, उनका HCF या LCM निकालना है ऐसे किसी डेसिमल्स वाले नंबर के, तो आप पहले क्या करिए, जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म्स और इन्हें रेशनल फॉर्म्स में लाइए। और अगर हमें LCM निकालनी है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स की निकालेंगे, HCF निकालेंगे डिनोमिनेटर के। अगर यहाँ पे HCF निकालनी होती है हमें तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स निकालते हैं ना, LCM ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। ये तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है बात। तो चलिए पहले अब LCM निकालते हैं। तो LCM ऑफ 25, 5 एंड 175, तो हमें LCM निकालनी है किसकी, 5, 25 एंड 175, 5 on 5, 5, 5, 25, 5, 3, 15, 5, 5, 25, 1, 5 on 5, 5, 7, 35, 7। तो जो हमारी LCM आ रही है इट्स 5, 5 एंड 7। ठीक, 5, 5, 7, 25, 5, 25, 25 इंटू 7, तो जो हमारा LCM आएगा 25 इंटू 7 150, इट्स 175। ऑब्वियसली HCF की बात करेंगे 10, 10, 1000 की, तो हमारी HCF क्या आएगी, HCF ऑफ 10, 10, 1000 10 आएगी। देन द LCM ऑफ द नंबर्स 2.5, 0.5 एंड 0.175 इज गिवन बाय 17.5। जो हमारा HCF आएगा वो 17.5 आएगा। ठीक, तो फिर से ऐसे किसी भी डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस में आपको फिर से बताता हूँ कि जो आपको माइंड रखना है कि जो भी डेसिमल्स वाले क्वेश्चन है 1, 2, 3 जो भी दें आपको, जितने भी नंबर्स दें बेटा आपको, वहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर्स, तो पहले उन्हें रेशनल फॉर्म में लाइए और हमें LCM निकालनी है तो वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। जो आपका रेशनल फॉर्म्स होगा उसका P/Q के फॉर्म्स, जो भी P के फॉर्मेट में जो नंबर्स होंगे, जो न्यूमरेटर्स होंगे उनका हम LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स के नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पे HCF निकालनी होती और जहाँ पर सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर उस नंबर्स के यहाँ तो मतलब कि हमारा HCF की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ता, पर यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा HCF आएगा वो बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ जाएगी, चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारा वहाँ पे LCM आप निकालना पड़ता। फिर अगर इसको रिवर्स करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता, हमें HCF ऑफ 25, 5, 175, मतलब हमारी HCF क्या आती है वहाँ पे वो निकालनी पड़ती है। और LCM ऑफ 10 तो हमारे पास वो डेसिमल में जाती, वो रिवर्स हो जाती, LCM
आपका 10,000 कैल्शियम, सॉरी 1,000 कैल्शियम आपका साथ 1,000 आता, और एचसीएफ आपका 5 आता, देन इट्स अ 5/1000 0.005 ऐसा कुछ मिलता है आपको, ठीक। तो ये इस तरह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आपको ये माइंड में सेट करना है कि आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। देन थैंक्स फॉर टुडे क्लास, ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स को रिवाइज करिएगा।